For the first time ever, Willow and Stumps steps beyond cricket with another inspiring sporting journey. Joining us today is one of India's finest young golfers, Sukhman Singh. Hello and welcome back to Willow and Stumps. Today we have with us Sukhman Singh, a professional golf player who has also represented the nation at various levels. Welcome Sukhman on the channel. Thank you, Abhishek. I'm really looking forward to this interaction and really excited. सेम ईयर भाई पहले हम स्टार्ट करें. आपने रिसेंटली ही प्रोफेशनल गोल्फ खेलना स्टार्ट किया एज अ प्रोफेशनल, तो आपकी जर्नी अब तक कैसी रही है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए. भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन मेरे को प्रो बनने से पहले भी बहुत मिला एंड अब तो बनने के बाद भी बहुत मिला. बट इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू अ 6 year old or a 7 year old Sukhman, he would have said the exact same thing, that I want to turn pro and become the best player possible. But as things progressed, when I started playing the amateur tour, I noticed that you cannot like cross every limit. You need to understand your surroundings, and based on your surroundings, then you have to take your decisions. So, with the workload of my school, of my college, and managing both studies and my sport, I thought it would be better if I stayed as an amateur and then focused on my studies as well, seek higher education, and while continuing my love for the game. But again, some days, just turn your life fully. So 21st December was that day when I won the All India Championship, and that is for me regarded as one of the biggest amateur events. And that was, of course, my and my whole family's dream. So winning that really gave me the boost to, look forward, to move forward, and that really helped me in turning pro as well. Because obviously, coming from amateur and becoming pro is not that easy. The game changes. You have to be consistent. You have to be loyal to the game as well. So yeah, that helped me. And uh, in terms of talking about turning pro, I played my first ever event in April in Mauritius. So I started off playing professional with the African tour, and we played Mauritius. And the very first shot, I had those jitters again, as if I'm a 11-year-old boy playing with the international boys. And luckily, I hit the ball straight, and yeah, and then just it just began. The journey just began, and since then, I'm just looking forward to every event. I'm very excited as soon as I tee up for a new event. And yeah, with the off season, I think this has been my longest off season of about 4 months. I'm not used to not playing golf this often. So yeah, I just can't wait for the season to begin again. And yeah, very excited. So when you talked about managing studies and playing golf, how difficult was it for you, or was it cakewalk for you? Bhai, to be very honest, sixth was when I thought that this would be very difficult, because obviously coming from primary to middle school, a Hmm. lot of things changed. New subjects, new exam criterias and all. And तैयारी करना एग्जाम्स के लिए, and while playing my tournaments as well, really messed up my mind. But that's where my school, Amity International School, really pushed me to manage both of them pretty well. And I missed plenty of classes. I mean, मेरे दोस्त जब वो फेयरवेल होता है स्कूल का, Hmm. तो रो रहे थे. मैं रोना चाहता था, बट मैं इतना अटेंड ही नहीं कर पाया, तो मैं रो ही नहीं पाया इतना. But still, my school has a very has a place in my heart. And so yeah, sixth, seventh, eighth was when थोड़ा मुझे difficulty face करनी पड़ी. But then unfortunately or fortunately lockdown आ गया. So that's when I used to focus more on my studies, because I had nothing else to do. Hmm. So I think that 2 year period really helped me in managing both of them. बट प्रॉब्लम मेनली तब भी आई जब मैं कॉलेज आया, बिकॉज कुछ कॉलेजेस की क्राइटेरिया होती है 75% वाली. हाँ. तो अब दैट थिंग वाज ऑब्वियसली इन माय सबकॉन्शियस माइंड कि कोई कॉलेज मिलेगा भी, अगर मिल भी गया देन हाउ विल आई कोप विद द अटेंडेंस, बिकॉज टूर्नामेंट्स तो मिस कर नहीं सकता.
हम्म। But I was very grateful to join DME, Delhi Metropolitan Education, in Noida only. And the first thing they said that we'll be absolutely supportive of you. And बस तब से शुरू हुआ है. I just finished my second year last week. So and एक एक परसेंट की प्रॉब्लम नहीं दी मेरे को कॉलेज ने, whether in terms of studies, whether in terms of attending the class, or even giving the internal exams. So yeah, huge thanks to the college, to my faculty, even to my friends. Well, they are the actual backbone. So yeah, I'm just really grateful to them. सुखमन, आपने बताया कि आपने क्लासेस मिस करी और फेयरवेल पे भी आप इमोशनल होना चाहते थे पर हो नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज जैसे रेगुलर बच्चे जाते हैं, आप कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं। मैं बहुत करता हूँ मिस. अब एक्चुअली जब स्कूल खत्म हो गया देन मैं सोचता हूँ कि काश थोड़ा और मैंने टाइम स्पेंड कर लिया होता. बट देन फिर मेरे को हिट करता है कि अगर मैं वो टाइम स्पेंड करने के लिए जाता तो मेरे टूर्नामेंट्स मिस हो जाते. तो हाँ। या प्रोज एंड कॉन्स तो उस चीज के भी हैं. बट जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक ये मोटिव भी था कि आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन कॉलेज लाइफ. ओके, कि हाँ। मुझे ऐसा नहीं है कि या तो मैं ऑनलाइन गोल्फ कर लूँ या फिर होम होम स्कूलिंग वो सब कर लूँ. आई आई हैड अ आई हैड अ विश कि आई वांट टू लिव दैट कॉलेज लाइफ जो मूवीज में देखते हैं ना, जैसे छिछोरे और उन सब मूवीज में. जैसे वो जी रहे थे कॉलेज लाइफ. आई रियली वांटेड टू लिव दैट लाइफ एंड लकीली आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी लिविंग दिस लाइफ. तो आप जी पा रहे हैं मूवी कॉलेज लाइफ। वैसे अब समझ आ रहा है कि मूवीज बहुत अलग होती है एक्चुअल कॉलेज लाइफ से. बट या आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेन द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड जस्ट लिव इन द प्रेजेंट. मैं भी कॉलेज में हूँ तो वही मूवीज में बहुत रोमांटिसाइज सेम करके चीज. दिखाया जाता है कॉलेज लाइफ, बट वही वही वही. रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। एंड मूविंग अहेड, आपने नेशनल मेन सर्किट एट एज ऑफ 11 पे ही खेलना स्टार्ट कर दिया था, तो आपको लगा था कि 11 ईयर्स पे इतनी बड़ी अचीवमेंट है, या उसके बाद आपको सिंक इन हुआ कि नहीं यार ये बड़ी चीज थी यार। उस टाइम इतना सिंकिंग नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली इतना मेच्योर्ड माइंड तो हम्म। था नहीं. एंड उस टाइम तो बस ये था कि बस जा रहे हैं and खेल रहे हैं. इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती थी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई थिंक कि आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि 11 की एज में आई एम प्लेइंग विद द नेशनल बॉयज एंड ऑल. एंड all credit goes to my family. I come from a sporting background. My dad is into golf. My dadaji was into golf. My chachaji was into golf. My nanaji was a international basketball player. My nani played badminton. My mom was in athletics. So वो मतलब वो जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स का खून मेरे अंदर ऑलरेडी था. तो वो एक चीज में मैं अपने आप को बहुत लकी मांगता हूँ क्योंकि बहुत शुरू पहले में, अब तो चलो काफी कॉमन हो गया स्पोर्ट्स, बट पहले होता था कि बस पढ़ाई करो. हाँ। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो. स्पोर्ट्स तो एज अ मतलब दोस्तों के साथ खेलने चले गए शाम को, वो वाली चीज होती थी. बट they just didn't let me down and they just kept pushing me. And my mom used to travel with me everywhere. कहीं भी टूर्नामेंट आ जाए इंडिया में, शी यूज्ड टू बी विद मी. डैड ऑब्वियसली उनके भी टूर्नामेंट्स होते थे, उनका ऑफिस होता था, तो वो जितना ट्राई करते थे उतना आते थे. बट माई मॉम इज मतलब आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू थैंक हर. एंड my dad was actually the one who inspired me into this game. So 2000, I was born in 2006, and जो मैं 21st December को मैच जीता, my dad reached the finals of the same match in 2006, the year I was born. ओके। But unfortunately, he couldn't turn that into a victory. वो finals हार गए थे. ओ। And I didn't know that until I won the event. And मेरे को उसके बाद पता चला कि मेरी फैमिली में I am the first one who reached the finals and gained the best out of it by winning it. तो वो एक चीज थी कि मतलब वो कहते हैं ना लाइफ इज अ फुल सर्कल. व्हाट हाँ। गोज अराउंड कम्स अराउंड. तो वो मेरे को चीज बहुत रियलाइज होती है. So yeah, starting the national tour at 11 was just fabulous. Being given that opportunity and at such young age, I'm just really proud of myself and my family. एंड भाई व्हेन यू वर स्टार्टिंग गोल्फ मतलब एमेच्योर लेवल पे खेलना, और आपने बताया कि आपके पूरा फैमिली स्पोर्ट्स में है, तो कहीं ना कहीं वो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस का बर्डन आपको फील हुआ कि यार ये इसको भी स्पोर्ट्स में अच्छा ही करना पड़ेगा, या फिर यू आर प्रीटी चिल। नो डाउट भाई, वो एक्सपेक्टेशंस मेरे को बिल्कुल हुई कि मतलब अब मैं इतने क्या कहते हैं इतने जेनरस स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, देन आई हैव टू कीप लिविंग दैट लेगेसी एज वेल.
बट वो धीरे धीरे एक स्पोर्टिंग फैमिली समझा सकती है कि विनिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यू नो, शोइंग अप इज व्हाट मैटर्स। आप हार गए और अगले मैच में अगर आप नहीं खेलने आए तो वो एथलीट नहीं होता। आप हम्म। हारे, अगले मैच में आए, आपने, आप आए हो, वो ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो फॉर मी दैट, वो जो मेंटालिटी थी कि एक शोइंग अप वाली मेंटालिटी, दैट वाज ऑल ड्यू टू माय फैमिली, बिकॉज मैं डैड को भी देखता था, ही डिडंट विन ऑल ऑफ हिज इवेंट्स, ही केम बैक एंड मैं जब पूछता था उनसे कि कैसा खेले, आप जीते क्या, क्योंकि उस टाइम छोटा था, मेरे को तो ट्रॉफी देखनी थी, कि आपके पास ट्रॉफी क्यों नहीं है, तो हम्म। कहते बच्चे, यू कांट विन एवरी मैच, यू नो, इवन इफ यू परफॉर्म योर बेस्ट, देर आर 99% होता है कि आप नहीं जीतोगे, बट एटलीस्ट आप अपने आप से तो जीतो ना, आप गए हो, आप वहां परफॉर्म करो, वो एक बहुत बड़ी जीत है। तो वो धीरे धीरे फिर मेरे को समझ आया कि विनिंग इज नॉट एवरीथिंग। तो वो एक चीज, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली फॉर दैट। जैसे आपने बताया कि विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, शोइंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एडवाइस इसके अलावा, जैसे आपने बताया आपके पूरे स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से फैमिली, और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट गोल्फ से रिलेटेड एडवाइस जो आपको मिली हो आपके डैड से, आपके ग्रैंडफादर से, जो आपको हेल्प करी हो आपके गोल्फ के लिए? एब्सोल्युटली, अब इतनी चीजें हैं कि मतलब एक वो टाइम होता है कि इतनी चीज हो जाती है कि माइंड ही इंटेंगल हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, गोल्फ के लिए तो स्पेशली, कि ड्राइव फॉर अ शो, पट फॉर अ डो। ओके। तो हाँ। अब गोल्फ में ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं। ड्राइवर इज व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, मतलब खेलना, होल जो खेलते हो पहले शॉट मारते हो, ड्राइवर से मारते हो। एंड पट फॉर अ डो मतलब जब आप लास्ट वाला। खत्म करते हो होल, लास्ट वाली चीज होगी। हम्म। तो ड्राइव फॉर अ शो मतलब कि ड्राइव बस दिखाने वाली चीज है, आप ड्राइव मार के मैच नहीं जीत सकते। हम्म। आपको शुरू करा है तो आपको खत्म भी करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू विन। तो पट फॉर अ डो मतलब घर पे ट्रॉफीज और पैसा खत्म करके ही पट आएगा, से यू जाएगा कांट ये। जस्ट विन जस्ट बाय स्टार्टिंग द इवेंट। तो वो एक हम्म। चीज थी जो मेरे दादाजी ने बताई। एंड देन डैड का, मैं मतलब एक काफी कॉमन चीज है जो वो कहते थे कि मतलब हर मैच में, देर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट परफॉर्म वेल, तो मैं अपने आप से ही बहुत गुस्सा आता था मुझे, एंड मतलब आई यूज्ड टू बी डिसअपॉइंटेड। तो वो बस एक चीज लिखते थे कि देर आर स्टिल प्लेंटी ऑफ होल्स टू प्ले, मैच खत्म नहीं हुआ अभी, हम्म। देर इज स्टिल लॉट टू, मैच खत्म भी हो गया तो ये तेरा आखिरी मैच तो है नहीं, हाँ। तूने आगे मैचेस खेले, तेरी पूरी लाइफ पड़ी आगे खेलने को। तो वो भी धीरे धीरे फिर मेरे को समझ आया कि खराब हो गया, क्या पता अगले में अच्छा हो जाए। तो दैट इज वन मेंटालिटी मेंटालिटी दैट केप्ट मी गोइंग, इवन फ्रॉम फेलियर्स। तो वो एक चीज थी। एंड एक और चीज मैंने बहुत अच्छी लगी मुझे अपनी फैमिली की, इवन व्हेन आई फाउंड सक्सेस, दे डिडंट लेट मी सेलिब्रेट इन अ वे दैट कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। उन्होंने मेरे को वैसा ही फील कराया जैसे कि अभी पूरी लाइफ तेरी आगे पड़ी है, ये जीत कुछ भी नहीं है अभी, दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। तो वो भी एक चीज थी कि आई ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ ऑन द ग्राउंड, अच्छा होल हुआ, खराब होल हुआ, जीता हूँ, हारा हूँ, देयर इज नो नीड टू रिएक्ट। हम्म। You are playing against yourself. You already have made up your mind how you want to perform, and when you perform, that's when you can compare it with. So yeah, ये दो चीज थी जो मेरे और दादाजी एंड पापा इम्पोर्टेंट, मतलब हर, मुझे याद रहती थी कि हर मैच के बाद ये चीज, इवन वाइल प्लेइंग। एंड दादाजी तो मतलब मेरी रोज ही इंटरेक्शन होती थी उनसे। तो आई लॉस्ट हिम लास्ट ईयर इन May। तो obviously I again I don't have words to explain that feeling, but unfortunately वो टाइम भी तब था जब मेरा मैच चल रहा था, तो आई वाज ऑलरेडी एट द फील्ड, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही इज नो मोर। तो एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट मेरे को सारी चीजें हिट हुई जो वो बोलते थे, सारी, मतलब वो ना फ्लैशबैक जो होता है ना, वो बस एक टेप रिकॉर्डर चल गया दिमाग में और वो बस चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। तो बिकॉज आई नो दैट नाउ आई कैन नॉट इवन टॉक टू हिम, आई कांट सी हिम एनी मोर। तो बट उसके बाद
I had to, obviously get over it because I had a lot of dreams, his dreams, in fact, to achieve. So, I got on to that ki Dadaji is always with me, obviously, because there is some kind of energy that, even a person when he reaches the heaven, he's still in contact with you. You're still connected to him. And that is when, when I started playing tournaments, when I started living those things कि मतलब यार ये कैसे हो रहा है, तब मेरे को समझ आता था कि ये मैं नहीं कर रहा, ये दादाजी कर रहे हैं मेरे लिए. तो हाँ, वो चीजें चलती रहती हैं इवन अभी भी कोई भी मैच में खेल रहा हूँ तो भी. ही इज श्योरली वाचिंग यू फ्रॉम हेवन एंड ही इज श्योरली प्राउड ऑफ यू. एंड भाई आपने 6 की एज में ही स्टार्ट कर दिया था गोल्फ खेलना, तो घर पे पेरेंट्स से कोच कैसे, मतलब वो भी तो हुआ होगा कि आपके डैड आपके पेरेंट्स से कोच कब बने, वैसा ट्रांजिशन कैसा दिखा था आपका? और उस टाइम मैं कहना चाहूंगा कि मेरे डैड ने ज्यादा कोचिंग मेरे को दी नहीं. ओके. बिकॉज ही ऑल्सो न्यू कि एवरीवन हैज, मतलब सबकी गेम यूनिक होती है, हम्म. सबकी गेम अलग होती है. यू कैनॉट टीच योर प्रीचिंग्स टू समवन न्यू. ओके. तो उन्होंने मुझे बस कहा कि तू बस जा और खेल, जैसा भी खेल, चाहे खराब खेल चाहे अच्छा खेल, तू बस खेल. खेल खेल के जो सीखते हैं ना, वो वाली चीज मेरे को उन्होंने स्टार्ट ऑफ द एट द अर्ली एज ही उन्होंने वो चीज मेरे दिमाग में डाल दी. And then, even I changed a lot of coaches in the beginning हम्म. and just kept on changing and changing and, grabbing all the technicalities and, all the techniques from everyone. करते कराते एक वो टाइप ऑफ एक गेम बिल्डअप हो गई. एक जो कहते हैं ना फाउंडेशन, वो बिल्डअप हो गई. एंड एक बार जब फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है, देन यू कैनॉट, कुछ भी कर लो, आप चेंज नहीं कर सकते हो. हम्म. जो आपकी एक बन गई है, आपकी रूट्स जो बन गई हैं, यू कैनॉट लाइक लाइक निकाल के नई रूट्स नहीं डल सकती. हाँ. तो वो एक चीज मेरे को, आई वुड से, मेरे पेरेंट्स ने हेल्प करी. ऑब्वियसली दे यूज्ड टू बी विद मी एवरीवेयर आई वेंट. इवन while practicing, my mom used to sit for hours behind me, just looking at me and, just मतलब देखते थे खेलते हुए, कुछ नहीं बोलना, बस खेल तू. तो वो आई वुड से कि एक चीज थी जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए डिफरेंटली करी. And I'm grateful for that, led me to be, standing here, sitting in front of you, giving the interview. एंड भाई एक मोमेंट कि wearing the India blazer and representing the nation, how was it for you, and take us back to that moment? बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरे डैड का एक घर पे पोर्ट्रेट है, वेयर ही इज वेयरिंग द इंडियन ब्लेजर विद अ ट्रॉफी इन हिज हैंड एंड टर्बन वर्बन फुल, एकदम मतलब स्मार्टली ड्रेस्ड. एंड वो पोर्ट्रेट घर पे है. तो वो मतलब ऑलमोस्ट मेरे को रोज दिखता था, जब से मतलब मेरे को याद है. मेरे को whenever I used to pass through the hallway, I used to see that photo and, just एक स्माइल सी आ जाती थी मुंह पे. एंड when I personally got the chance to represent the country, पहली चीज तो ये थी कि मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ, पहली बात, कि मतलब मेरे को इंडिया का ब्लेजर पहनने को मिलेगा. So, and fortunately, my dad was with me when I represented India for the first time. He traveled with me. So, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना, गेटिंग योर ब्लेजर. मैं शॉप में गया, नाप दिया, एंड उन्होंने कहा ब्लेजर व्लेजर सब रेडी हो जाएगा. बैच जो लगता है इंडिया का यहाँ पे, तो वो जब लगा, फिर जब घर आया, तो वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड वाज जस्ट ट्राई इट ऑन. एंड जस्ट वो फीलिंग जो होती है ना जब पहली बार पहनते हो. एंड मेरे को फिर वो सीन याद आ गया, वो भाग मिल्खा भाग वाला सीन था ना, व्हेन ही ट्राइड हिज ब्लेजर विदाउट आस्किंग हिम. एंड शेर सिंह राणा को हराएगा एंड ऑल हाँ. दैट. जो आहो बोलता है वो, दैट थ्री लेटर वर्ड हैज, ऑल द पावर. उसने बोला एंड करके दिखाया, खुद कमाया. तो लकली वो भी एक चीज मेरे दिमाग में चलती रहती है. मेरे फ्रेंड्स को पता है मैं बहुत ये सब बातें करता हूँ उनसे रिलेट उनके उनके साथ. तो या एंड वेयरिंग दैट, एंड जब टूर्नामेंट की बारी आई, तो एयरपोर्ट पे जब गया, तो मतलब अलग से ही लगता है कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग जस्ट माई सेल्फ, आई एम रिप्रेजेंटिंग यू नो ऑल ऑफ इंडिया, 1.5 150 करोड़ पीपल. एंड मतलब उन सबकी बिलीफ, उन सबकी विशेस लेके मैं चल रहा हूँ. तो एक, आई वुडंट से एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक टाइप ऑफ एक विल पावर आ गई थी कि यार अब तो दिखाना है, करके दिखाना है.
तो ब्लेजर पहन के आ रहे हो, एवरीवनस लुकिंग एट यू, क्लिकिंग पिक्चर्स, फोटो खिंचवा रहे हैं आपके साथ, तो वो उस टाइम पे बड़ा अच्छा सा लगता था, बिकॉज नो वन हैज एवर लिव्ड दैट मोमेंट, वेरी फ्यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. So yeah, that moment I won't forget. And having my dad, uh, wearing the Indian blazer and standing with the flag is just out of my imagination. Yeah. As you talk, I am also getting goosebumps because हम जैसे इंडियन फैन जर्सी भी पहनते तो एक सेंस ऑफ हाँ इमोशन आ जी, जाता हाँ है, जी, और आप तो हाँ जी. इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तो एकदम अलग ही फीलिंग होगी, आई एम श्योर. बिल्कुल, बिल्कुल. और सुखमन, आपने ना बहुत सारे कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, तो कौन सी कंट्री आपको लगा कि सबसे डिफिकल्ट है, मतलब कल्चर वाइज या फिर थोड़ा अडेप्शन वाइज, और वहां पे आपको सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या थी आपके लिए? I would say, partner, South Africa जब मैं खेलने गया, हम्म. that felt like, a whole different league, because India and South Africa काफी strong relationship है. Even before I started playing, they हम्म. used to travel to India to play Indian championships, and then we used to travel to them to play their championships. तो एक वो टाइप ऑफ एक बॉन्ड बन गई थी उनके साथ. तो आई मेरा डेब्यू हुआ था साउथ अफ्रीका में खेलने का इन जनवरी, नो नो नो, February, 2025 February. And that's when we had a tournament for two back-to-back weeks. So हम गए खेलने, एंड पहली वीक तो मैं जब पहुंचा वहां तो बड़ा ही मतलब, obviously whenever you go to a new country you take some time to adapt to हम्म. their culture and all. तो अब हम जब पहुंचे गोल्फ क्लब, तो लुकिंग एट ऑल दोस गोल्फर्स जिनको मतलब साउथ अफ्रीकन गोल्फर्स आर वेरी अपलॉडेड वैसे इन हम्म. गोल्फिंग वर्ल्ड. तो लुकिंग एट दोस सेम गोल्फर्स जिनको मतलब न्यूज में देखा है, फोन इंस्टाग्राम पे देखा है कि दे आर विनिंग चैंपियनशिप्स, एंड लुकिंग एट देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाज अ वेरी, आई वुड से, अ वेरी पॉजिटिव मोमेंट, कि मतलब जिनको हम देखते थे डिजिटली, वो अब सामने हम देख पा रहे हैं, उनके साथ खेलेंगे हम. तो एंड व्हेन मतलब आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जब जब मैं खेला तो आई हैड अ इंटरनेशनल प्लेयर प्लेइंग विद मी. तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देम प्ले, जस्ट बाय लुकिंग एट देम कि हाउ दे थिंक व्हाइल प्लेइंग, देयर मेंटालिटी, एंड हाउ दे ऑब्जर्व इवन एवरी बिट ऑफ द गेम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. तो वो एक चीज थी कि जो मेरे को समझ आई कि हाँ यार, अभी तो हम जो खेल रहे हैं कुछ भी नहीं है, दैट्स नथिंग. कितना सीखने को मिल रहा है अभी, वो चीज है. And for that, obviously, I would like to thank the Indian Golf Union, because such opportunities is very limited, especially in India. So just giving me that opportunity to represent the country and playing with such applauded competitors really helped us learn. And then उनको देख के जो learnings मिली हमने हमें, वो हम वापस अपने अपने सर्कल के साथ हम उन्हें शेयर कर सकते हैं, so that they also learn. तो वो एक चीज आई वुड से कि हमें काफी हेल्प मिली उसमें. एंड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, आई वुड से एब्सोल्युटली साउथ अफ्रीकन्स आर लाइक वन ऑफ द, I would say, the beasts of international golf, and they are like on a very positive growth, and huge congrats to all of them who are doing well. And I would like to just I would like to actually applaud their federation as well. The way they handle everything from start to finish of an event, the way they welcome us, they make us feel their own. तो वो एक चीज हमें काफी अच्छी लगती है. और आपने ना बहुत सारी कंट्रीज और टूर्नामेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं पे आपको लगा कि ये नहीं यार, आई बिलोंग हियर, ऐसी बिलोंगनेस की सिचुएशन आई एट द इंटरनेशनल लेवल? और साउथ अफ्रीका में ही सेकेंड वीक, हम्म. तो फर्स्ट वीक आई हैड द jitters, representing India for the first time in South Africa. तो आई didn't perform well. I had those कि मतलब ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. बट देन सेकेंड वीक जब आया, आई फेल्ट लाइक कि अब जैसे बोलते हैं ना, ये मेरा अड्डा है, हम्म. आई हम्म. बिलोंग हियर. हम्म. तो वो
मेरे को खेलते हुए पता चला ये कि मतलब ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड तो ये था कि आई डिडंट परफॉर्म वेल लास्ट वीक, but even the manager was very positive about these things कि it's a new week, it's a new destination, it's a new course, new tournament, हम्म. new opportunities. तो स्टार्ट से पहले शॉट से आई वाज लाइक कि मतलब ये तो मैं जीत के जाऊंगा. So I started playing. I started off pretty well, and at one time I was leading the whole set of competitors. There were about 132, I think, competitors. जिसमें से मतलब 120 was South Africans. Oh. तो वो एक चीज आई वुड से कि काफी बिलोंगिंगनेस वहाँ फील हुई एंड परफॉर्म्ड वेल. उसमें क्या होता है कि 2 days के बाद देन राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ हम्म. 16 और वो सब चीजें चलती है. हम्म. तो 2 days के बाद भी दे हैड अ लाइक ट्रॉफी प्राइज प्रेजेंटेशन कि हाउ द पीपल हैव परफॉर्म्ड. तो उसमें आई स्टूड ऑन द पोडियम एंड उधर खड़े होके representing billions of people and standing there holding the trophy really gave me the boost to look forward और जितनी चैंपियनशिप्स आएंगी आगे खेलने को. तो वो एक चीज मुझे लगा कि वो जो सेकेंड वीक था आई रियली फेल्ट दैट आई बिलोंग थे. एंड अभी आईजीपीएल भी स्टार्ट हो गया है. मतलब आईजीपीएल गोल्फ के टूर्नामेंट में गोल्फ के स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंडिया. तो व्हाट आईजीपीएल हैज प्लेड रोल इन योर लाइफ एंड हाउ डू यू सी आईजीपीएल ग्रोइंग फॉरवर्ड? So IGPL started last year, and the moment it started, it caught everyone's attention because it was something new, something very modern, and something जैसे वो बोलते हैं ना Gen Z. हाँ हाँ. तो एक वो टाइप ऑफ मतलब कि हाँ यार ये कुछ हमारे मतलब की चीज आई है. एंड उनका विजन भी ये है टू increase the level of not only golf but also other sports at grassroots level. हाँ. जो मतलब रूरल एरिया है जहाँ मतलब किसी को पता भी नहीं है कि क्या स्पोर्ट है, वहां तक पहुंचना एंड देन टीचिंग देम, हेल्पिंग देम लर्न अबाउट द स्पोर्ट. वो एक चीज मुझे लगा कि दे आर लुकिंग एट समथिंग बेटर देन गोल्फ. दे आर लुकिंग एट इम्प्रूविंग द स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी ऑफ द कंट्री, जो कि अभी काफी ग्रो हो रही है. I would say with all the schemes and the administrative work in the ministry and all, वो काफी help कर रही है not only golf but also other sports को भी. क्रिकेट तो है ही नो डाउट एट वन ऑफ इट्स बेस्ट, बट अब धीरे धीरे और स्पोर्ट्स को भी इंपॉर्टेंस मिल रही है. एंड why I think IGPL was the best for me was obviously because they had a very larger view at how to go forward with things. And you know their vision was obviously to just grow the game, not only golf but grow every game in the country. And I was very fortunate to be selected by them to join the league in April itself. And I started off with my African tour, and वो तीनों events were just mesmerizing. And हमने मतलब इवेंट्स भी ऐसी जगह रखे जहां मतलब ग्रोथ हमें दिखी वहां जाके. तो वी प्लेड इन कॉन्गो द थर्ड वीक, द डीआर ऑफ कॉन्गो. एंड वहां पे जाके हमें समझ आया कि वहां का कल्चर जो था वो मतलब हम देख के हैरान हो गए कि मतलब इतना छोटी सी कंट्री इतनी बड़ी बड़ी चीजें करती है. एंड उनके साथ इंटरेक्ट करना, वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ, वहाँ के गोल्फर्स के साथ, वहाँ के मतलब नॉर्मल इवन नॉर्मल सिटीजन्स के साथ, एंड देन उनका पर्सपेक्टिव जानना, वो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो आईजीपीएल, एएम ग्रीन आईजीपीएल हेल्प करती है इस चीज में. बिल्डिंग बॉन्ड्स, इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, सेटिंग स्टैंडर्ड्स. वो एक चीज आई वुड लाइक टू प्रेज एएम ग्रीन आईजीपीएल की. And everyone at the AM Green IGPL are like always are looking forward. They always have a goal, always have objectives. तो वो एक चीज है जो मुझे काफी अच्छी लगी. They help us build objectives. They help us reach our goals.
So, no, undoubtedly, very grateful to the AM Green IGPL community for starting something like this. So, I would say about the AM Green IGPL. जैसे आपने बताया इनिशियल सीजन में ही आईजीपीएल इज डूइंग सो गुड, तो आई एम श्योर कि आगे चलते तो ये बहुत ग्रो होगा, और इससे जैसे आपने बताया कॉन्गो Absolutely, में, तो इंडिया में भी ये स्पोर्ट ग्रो होगा, बिकॉज पोटेंशियल तो है हमारी absolutely, कंट्री में। absolutely. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमें मतलब मैं खुद कह सकता हूँ क्योंकि मैं खेलता हूँ, वही जो हम्म पोटेंशियल है उनके हम्म साथ खेलता हूँ, एंड आई कैन से अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले हम्म then we can do wonders. Obviously Indians को जब opportunity मिलती है, and we have seen people who get the opportunity just ravish out of their imagination. So I would say it's just a matter of opportunity. Once we get that opportunity, we have the whole world to ourselves. Hi, sorry to interrupt you in between, but if you are watching the videos and not subscribing the channel, it is not fair. Please subscribe the channel, and it helps us a lot because it takes a lot of effort to make such videos. So subscribe the channel and enjoy the interview. भाई, एक है ना, खराब होल या खराब टूर्नामेंट होता है, तो उसके बाद आप मेंटली कैसे रीसेट करते हो, या फिर इट प्लेज ऑन योर माइंड? There are times that it used to play on my mind, but then धीरे धीरे खेल के समझ आया कि वही this is not the end of it. राउंड के बीच में ही अगर आप 18 होल्स का एक एक राउंड होता है हमारा, हम्म। अगर राउंड के बीच में ही अगर आपका फोर्थ या फिफ्थ होल खराब हो गया तो भी क्या हुआ, यू हैव प्लेंटी ऑफ गेम टू प्ले उसी राउंड में भी। यू क्या पता अगले होल पे मिरेकल हो जाए। हम्म एंड देयर आर टाइम्स जो हुआ भी है मेरे साथ, मतलब अगेन वही ऑल इंडिया वाली चीज, दैट दैट आई वुड से दैट टाइम अक्टूबर से लेकर दिसंबर मिड was a very rough time for me in my game, golf को लेके, tournaments को लेके, and that happened after I won my very first amateur event August में। And then उसके बाद I don't know, maybe expectations बढ़ गई होंगी, होता है, वो होता है, बिल्कुल जीत जाते हो then आपको लगता है कि आप सब कुछ जीतोगे, बट उसके बाद एकदम से डाउन होने लगी मेरी परफॉर्मेंसेस। आई स्टार्टेड टॉप थ्रीज की जगह टॉप टेन आने लग गए, स्कोरिंग एवरेज मेरी खराब हो गई, मतलब पॉइंट्स जो मिल रहे थे वो कम हो गए, एंड मतलब पॉइंट्स के लेके फिर आगे जाके रैंकिंग हमारी ऑर्डर ऑफ मेरिट जो चलता है साल एंड का, वो डिसाइड होता है। तो पॉइंट्स नहीं मिल रहे मेरे को, एंड दैट यूज टू कीप मी थिंकिंग कि यार अब क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरी वापस वो ग्रूव आ जाए। एंड देन ड्यूरिंग दैट ऑल इंडिया वीक, तो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड, एंड आफ्टर दोस टू राउंड्स क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं। सो after two rounds, only the top 32 qualify, and then round of 32, round of 16, and so on. तो पहले राउंड में जो क्वालिफिकेशन राउंड्स होते हैं, उसमें पहले राउंड में आई डिडंट प्ले वेल, एंड देन आई आई काइंड ऑफ जस्ट बर्स्टेड कि यार मतलब साल का लास्ट इवेंट है, इसमें भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं कुछ, सबसे बड़ा इवेंट है, यहाँ पे भी नहीं आ रही परफॉर्मेंस, ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या गलती कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हेन आई कॉल्ड माय डैड वेरी फ्यूरियसली कि मतलब क्या करूं मैं। तो उन्होंने बस ये कहा कि करना छोड़, सबसे पहले तो जो तू ट्राई कर रहा है ना हम्म वो भूल जा, तू किसी रीजन से यहां तक पहुंचा है, और वही रीजन तेरे को आगे लेके जाएगी। अगर तू उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा ना तो वो उल्टा पड़ेगा तेरे पे, बिकॉज देन यू वॉन्ट बी प्लेइंग विद योर कॉन्शियस माइंड, देन यू वुड बी प्लेइंग विद योर कॉन्शियस माइंड। गोल्फ इज अ गेम ऑफ सबकॉन्शियस। हम्म। आपने सीख लिया जो सीख लिया, अगर आप शॉट मारते हुए चीजें सोच रहे हो तो चांस ही नहीं है कि वो शॉट अच्छा चले जाए। यू डोंट हैव टू थिंक मच गेम के बारे में या गेम से कुछ भी रिलेटेड वाइल प्लेइंग। बाकी जो सोचना है सोचो, मतलब गाने गा लो मन में या फिर मतलब बातचीत कर लो दोस्तों के साथ, थिंक अबाउट द फ्यूचर, थिंक अबाउट द पास्ट, ऑल द गुड मेमोरीज, ऑल द ग्लिमर्स, एंड वो एक चीज फिर मेरे को रियलाइज हुई कि हाँ यार, आई एम थिंकिंग अलॉट, आई एम ओवर थिंकिंग हम्म। while playing. That is what is the reason for my bad performances. I won't say bad, I would say average performances. And that is when my whole जो कहते हैं ना एक पर्सनालिटी शिफ्ट हुई। जो सेकंड क्वालिफिकेशन राउंड था, आई प्लेड वेल, आई क्वालिफाइड एज द 16th सीड,
आई फिनिश 16 एंड देन उसके बाद करते कराते आई मेरे को एक से एक धुरंधर मिले मेरे मैच प्ले में। तो राउंड ऑफ 32 और वो सब 1v1 होता है। हाँ। जब हार गए नॉकआउट तब हार हो गए। हम्म। मेरे को राउंड ऑफ 32 से धुरंधर मिलने शुरू हो गए कि मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई भी मैच इजी मिला कि मैंने हम्म। मतलब खराब खेल के भी जीत राउंड ऑफ 32, 16, 8 क्वार्टर सेमीज एंड फाइनल्स। छः छः नॉकआउट स्टेजेस थे एंड छः के छः में आई हैड द बेस्ट मैच प्ले प्लेयर ऑफ दैट टाइम ऑफ द मॉडर्न टाइम। आई हैड द डिफेंडिंग चैंपियन। आई हैड वेटरन्स जो मतलब ये खेल चुके हैं सब चीजें, उनको पता है कैसे खेलना है सब। हम्म। एंड स्टिल आई वाज एबल टू ब्रेक थ्रू ऑल ऑफ दैट ओनली बिकॉज माय डैड टोल्ड मी कि ये सब चीजें छोड़ना सोचना छोड़ दे एंड जस्ट play your game, be loyal to your game. And that is what helped me get that win. And and that thinking would surely help me even achieve greater heights. एंड जो आपने बताया कि फ्रेंड से बात करना, म्यूजिक सुनना, दैट हेल्प, मतलब आपको हेल्प किया म्यूजिक? आप क्या सुनते थे आप? बिल्कुल। मैं recently I listened to a lot of Karan Aujla and many of my friends would also back me on that because कॉन्सर्ट पे भी गया मैं, रीले डाली मैंने उसके बारे में एंड क्रेज पता चल गया। मैंने अपनी बायो में औजला हॉलिक लिखा हुआ है। तो मतलब दैट टेल्स दैट आई एम एक्चुअली अ डाई हार्ड फैन एंड व्हाई आई कनेक्टेड विद हिम बिकॉज उसकी जो बैक स्टोरी है वो सबको नहीं पता। हम्म। what has happened with him and what he has gone through, what he has been through, you cannot even imagine. And वहां से यहाँ तक पहुंचना is very influential for us athletes because we can obviously relate with his progress. हम उसका माइंडसेट समझ सकते हैं कि मतलब उस टाइम पे क्या होगा उसका माइंडसेट और उसने क्या ऐसा सोचा जिससे कि वो अब यहाँ पहुंच गए। प्लस उसके लिरिक्स एक तो पंजाबी है एंड आई कैन रिलेट अ लॉट। उसके जो लिरिक्स के मीनिंग्स है ना वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई लिसन टू करण औजला। एंड ऑफ कोर्स बाकी सारे तो यू नो बहुत सिंगर्स हैं सबके अपने अपने हैं बट पर्सनली आई वुड से आई एम अ ह्यूज करण औजला फैन। नॉट बिकॉज ऑफ हिज फैन फॉलोइंग या फिर फेम, ओनली बिकॉज ऑफ हिज बैक स्टोरी and how he confers his life and his life teachings through his songs. तो वो एक चीज है why I love him so much. आपने एक बहुत प्यारी बात करी कि सिर्फ सॉन्ग्स या सिंगर्स के गानों के लिए नहीं, मतलब वो इंस्पायर करते हैं बियॉन्ड दैट। जैसे मेरे लिए, मैं Absolutely. MS धोनी की बात करूं, उनका प्ले बहुत अच्छा है, मतलब उनका क्रिकेट बहुत अच्छा है। बट व्हाट इंस्पायर्स मी कि वो इतने छोटे टाउन से आके इंडिया के कैप्टन Correct. बनना, और ये जो स्टोरीज Correct. होती है ना, द ह्यूमन बिल्कुल। स्टोरीज बिहाइंड बिल्कुल। दिस पर्सनालिटीज, दैट इंस्पायर्स करेक्ट। अस। सबको सबको फेम दिखता है कि मतलब वो ये जीत गया इसलिए वहां पहुंच गया, किसी को एक्चुअल पता ही नहीं है कि वो कहाँ से पहुंचा है। तो आई थिंक अगर किसी बंदे को वो समझ आ जाए ना तो उसकी पूरी मेंटालिटी शिफ्ट हो जाती है कि हाँ यार मतलब बात है इस आदमी में। एंड वो एक बूस्ट भी देता है आपको कि मतलब अगर वो कर सकता है देन हम भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट विल इन द इवेंचुअली हेल्प अस ग्रो। बिल्कुल, क्योंकि औजला का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, करण औजला के गाने। रिसेंटली अभी अभी वो मैं भी करण औजला और विराट कोहली वाले जो गए तो आई हैड टू मिस इट बट मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे एक दो दोस्त गए एंड जस्ट लुकिंग एट देयर स्टोरीज बहुत फील हुआ मुझे बट अगर ये नहीं तो कभी और क्या पता कभी एक्चुअली में मिलने का मौका मिल जाए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा मौका उनसे मिलने का। आगे बढ़ते हैं। जब फेलियर आता है या कभी बुरा दिन होता है, तो मतलब आपने बात करी कि हाउ डू यू रीसेट, या मतलब कभी है ना डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आप पूरा दिन गोल्फ के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि है ना वो भी कभी कभी इट टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड। तो आप आपकी हॉबी परस्यू करते हो अपार्ट फ्रॉम गोल्फ, वो क्या है, और हाउ डू यू रीसेट आफ्टर अ बैड डे? तो आपने ये बात कही तो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई जो अभी मेरे साथ रिसेंटली अप्रैल में हुआ। So Gaganjit Bhullar is a very renowned Indian golfer, one of the best, I would say. He's a multiple time, Asian Tour winner, national tour winner. And मैं ऐसे ही I didn't play well in my second start as a pro. Mauritius वाला I did well, but उसके जो next week था South Africa, I didn't do that well. तो I thought
उनसे बेटर कोई है नहीं जिनसे बात मैं कर सकता हूँ खुल के. So he was just sitting near the practice area, and I just went there and I just asked him, "Ki sir, if you don't mind, I just want to ask you a few things." And he was very positive, and he just told me कि सबसे पहले तो खुल के बात करियो, जो है सब बता. हम्म. तो मैं कहा सर वही कि I turned professional, and I'm not performing well this week, and expectations जो थी मेरी उनसे I'm not being able to achieve what I wanted to. मतलब जो मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा. इवन व्हेन आई एम स्टैंडिंग स्टिल एंड जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट द गेम, तब भी मेरा वो जो मुझे रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि व्हाट डिफाइंस अ गुड गोल्फर. उन्होंने कहा कि हाउ फास्ट यू कैन फॉरगेट योर रिसेंटली प्लेड राउंड. कितनी जल्दी जो आपने राउंड खेला वो भूल सकते हो. वो राउंड आपका लाइफ का बेस्ट राउंड भी हो सकता है, वो राउंड आपकी लाइफ का वर्स्ट राउंड भी हो सकता है. वो चीज आप कितनी जल्दी भूल सकते हो, दैट इज व्हाट डिफर्स अ ग्रेट गोल्फर देन एन एवरेज गोल्फर. तो मैंने पूछा सर क्या कैसे कर सकते हैं ये चीज. तो वो कहते हैं सबसे पहले तो तू भूल जा जो तूने जो भी हुआ है तेरे साथ, अच्छा बुरा सब भूल जा. तू जब सोएगा रात को, तू जब बेड पे लेटेगा तो बिफोर स्लीपिंग मेडिटेट योर सेल्फ टू स्लीप. एंड वो कैसे. तो उन्होंने बताया कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स दैट हैपेंड विद यू. भूल जा जो खराब चीज हुई, भूल जा. कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा जो तू सोच रहा होगा कि यार ये तो अच्छी चीज हो गई. ये हम्म. टूर्नामेंट का नहीं, वैसे भी कभी भी अच्छा हुआ होगा. हम्म. स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स. एंड दैट इवेंचुअली हेल्प मी रियलाइज कि इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लुक एट द पॉजिटिव्स एज वेल. सब सब लोग नेगेटिव्स देखते हैं, कि यार ये हो गया मेरे साथ, अब ये नहीं कर पाऊंगा. बट क्या पता जो आपके साथ अच्छी चीजें हुई हैं दैट वुड इवेंचुअली हेल्प यू डू बेटर थिंग्स. तो वो उस दिन से मैंने अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करा कि चाहे जो भी हो जाए, गलती हो रही है मेरी वजह से हो रही है या कुछ भी हो रहा है, मेरे को वो सोचना ही नहीं है. आई जस्ट वांट टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स एंड जस्ट हैव दोज इन माई माइंड. एंड आप मानोगे नहीं कि वो चीज काम करती है बिल्कुल. मतलब बहुत लोगों को लगेगा कि ये मतलब बस एक नॉर्मल एक टैक्टिक है, हम्म. बट वंस यू डू इट योरसेल्फ you'll realize how मतलब इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा इम्पैक्ट देती है. तो आई वुड लाइक टू क्रेडिट दिस थिंकिंग टू मिस्टर भुल्लर. एंड ही इज आल्सो फ्रॉम द एमग्रीन आईजीपीएल. तो एक वो कनेक्शन सा फील हो जाता है और खुद उनसे. तो आई एम रियली ग्लैड आई रीच्ड आउट टू हिम. एंड एक इतने मतलब अचीव्ड गोल्फर से ये सब चीजें समझना है ना, इज अ विन इटसेल्फ. एंड तो वो चीज आई वुड से कि रियली हेल्प मी कैरी ऑन फ्रॉम अ फेलियर. व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस इज कि मतलब अगर आप सक्सेस भी हुए तो भी माथे पे नहीं चढ़ने देना है, और अगर फेलियर भी हुए बिल्कुल तो भी सर पे नहीं बिल्कुल चढ़ने दिया है, बिकॉज यू नीड टू बिल्कुल. स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो अगेन. कोई भी नया टूर्नामेंट आप आप गेम जीरो से से ही बड़े नहीं स्टार्ट. हो सकते. बिल्कुल. जैसे आपने बोला ना कि माथे पे नहीं चढ़ने दे सकते, आप चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाओ, आप तब भी गेम से बड़े नहीं हो सकते. तो वो एक चीज है जो मेरे को मतलब इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स इन माय फाउंडेशन कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड वट एवर हैपन्स. चाहे कुछ भी हो जाए, अब कोई कितना बड़ा मैच जीत जाओ, एंड गेम से बड़ा कोई आदमी नहीं है. कोई भी गेम से बड़ा कोई आदमी नहीं है. इवन विराट कोहली इज बिगर देन क्रिकेट. देर आर टाइम्स व्हेन good things have not happened with him, but the belief that he can do, obviously we have all seen such incidents. बिल्कुल. एंड टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, विनिंग द अमेच्योर चैंपियनशिप, जो आपके फैमिली में से सबका सपना था, आपके लेट दादाजी का भी सपना था. तो आपको कैसा लगा उसके बाद, वो जीतने के बाद, एंड फैमिली में कैसा माहौल था? uh, मेरे को चिल्स आ गया एक्चुअली जैसे ही मैंने वो सोचा सब कुछ. तो एज आई सेड पहले कि आई वाजंट एट माय बेस्ट गोइंग इनटू दैट वीक. आई वाजंट परफॉर्मिंग वेल. तो आई हैड zero expectations from myself. I just wanted कि let's end the season on a good note and we'll rebuild and refocus for the next season. एंड बस वो क्वालिफिकेशन हुई एंड राउंड ऑफ 32 से लेकर
फाइनल्स कब खत्म हुआ कुछ पता भी नहीं चला. आई जस्ट केप्ट ऑन गोइंग गोइंग. आई वुड से कि उस टाइम पे एक वो अलग ही सुखमन था, जो मतलब जिसको मतलब मैं भी देखता हूँ कि मतलब यार क्या ही चीज कर दी मैंने उस टाइम. एंड टॉकिंग अबाउट द फाइनल राउंड, उससे एक रात पहले जब मैं सेमीफाइनल्स जीता, तो आई कॉल्ड माय डैड टू टेल हिम कि मतलब मैं सेमीफाइनल्स जीत गया. एंड वो इमोशनल हो गए. एंड मैंने कभी वो चीज उनसे मतलब इंटरेक्ट करते हुए पहले कभी नहीं देखा था. तो मैंने एकदम से अपना फोन मतलब मम्मा को दे दिया कि आप बात कर दो, नहीं तो मतलब मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा. बिकॉज आई डेंट वांटेड दैट टू जस्ट ravel up in my mind. तो जैसे तैसे करके वो रात मेरी बड़ी मुश्किल कटी एक्चुअली, फाइनल से पहले वाली रात. आई जस्ट जस्ट couldn't स्लीप, क्योंकि दैट टुमारो कुड बी माय बिगेस्ट डे, और एक ऐसा दिन जो मैं भूलना चाहूंगा. जीत गया तो मेरे लिए मतलब मैं कभी वो दिन नहीं भूलूंगा, और अगर मैं हार गया तो सबसे पहली चीज मैं वो दिन भूलना चाहूंगा. एंड वी हैड a 6:30 स्टार्ट. So, we got up early, वार्म अप करा अपना. जब मैं टी पे पहुंचा ना, जब स्टार्ट करना था, तो उन्होंने वो ट्रॉफी रख दी वहां पे. एंड मैं बस वो ट्रॉफी को ही देखता रहा. मतलब मैं देख ही नहीं रहा था कि मुझे करना क्या है आज. आई जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट द ट्रॉफी की यार, एंड जस्ट केप्ट स्माइलिंग उस ट्रॉफी को देख के. एंड दैट लेड मी टू द लॉस ऑफ द फर्स्ट होल. पहले होल में हार गया. 36 होल्स का मैच होता है फाइनल्स. हम्म. तो पहला होल में हार गया. एंड देन मेरे को जो मतलब मेरे कैडी भैया थे जो मतलब खिला रहे थे मेरे को, उन्होंने कहा कि अभी ट्रॉफी मत देखो, ट्रॉफी के लिए अभी 35 होल्स और खेलने पड़ेंगे, और अगर आप ट्रॉफी दिमाग में रखोगे आप वो 35 होल्स खेल ही नहीं पाओगे. तो वो मैंने अपने दिमाग से हटाई ट्रॉफी की. आई हैव टू वर्क हार्ड टू गेट माई हैंड्स ऑन दैट. तो देन जस्ट आई जस्ट changed my whole perspective, and then just kept on winning holes, and karte karate I finished the game on the 29th hole, 7 and 6, 7 up with 6 to play. And जब वो खत्म हुआ, तो मेरे को जैसे ही मतलब मैंने विनिंग पट डाला, तो मेरे को सबसे पहले समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं अब. क्योंकि ये जो मैंने कर दिया है, ये तो मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि कभी मैं कर दूंगा. And the first thing I did was I ran to my mom. I gave her a hug, and एकदम से डैड को कॉल लगाई. वो फिर इमोशनल हो, एंड देन उस टाइम पे मैं भी टूट गया. बिकॉज उस टाइम पे आई थॉट कि इट्स बेटर टू लेट आउट ऑल ऑफ द इमोशंस. एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि मैं मेरी मॉम साइड पे है, मैं डैड से बात कर रहा हूँ और मेरे दादाजी मेरे को ऊपर से देख रहे हैं. एंड करते कराते आई जस्ट प्राइज प्रेजेंटेशन से पहले मैं जाके चेंजिंग रूम में बस चुपचाप बैठ गया. आई जस्ट आई जस्ट ट्राई टू रियलाइज कि मैंने क्या कर दिया है. That I have, completed one of my dreams, one of my family's dream. एंड मैं बस वहां जाके बस चुपचाप आंखें बंद करके ऐसा हाथ रख के बस बैठा हूँ. एंड देन हाथ शिवर हो रहे थे अभी. जैसे तैसे करके प्राइज प्रेजेंटेशन हुई एंड ऑल. एंड अगले दिन उसी दिन मतलब इंटरव्यूज हुए, प्रेस इंटरव्यूज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. एंड जब न्यूज आर्टिकल्स आए, हम्म. तो एक न्यूज आर्टिकल गॉट माय अटेंशन. उस पे बहुत एक ब्लू बॉक्स में व्हाइट से लिखा हुआ था, अ फादर्स ड्रीम रियलाइज्ड. तो वो देख के ना मतलब मेरे को बहुत, आई वोंट से खुशी, खुशी तो बहुत ही छोटा शब्द है, बट एक टाइप ऑफ एक ऐसा मूवमेंट था जो मतलब अभी मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ. एंड फादर्स ड्रीम रियलाइज्ड. एंड जब पता चला मुझे कि अब मैं जीत गया हूँ, तो मेरे को समझ आया कि दादाजी कितना खुश होंगे मेरे. बिकॉज उन्होंने देखा मुझे नंबर वन बनते हुए देखा. एंड अब ये करते हुए देखा जो मतलब किसी ने नहीं सोचा था. तो वो एक चीज मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मेरी फैमिली कभी नहीं भूल पाएगी. एंड yeah, I just can't express it more, because I want to, but I don't have the words to express it even more. But yeah, that trophy, that week was something very special. एंड सुखमन, आगे बात करते हैं कि आपने इमेच्योर बहुत समय खेला, अब नाउ यू आर प्रोफेशनल, प्रो बन गए हैं आप.
तो what is the difference in playing amateur level golf and pro level golf? थोड़ा explain for the viewers so that they can get better clarity about that. बिल्कुल बिल्कुल. So the main thing I found while changing from an amateur to the professional is your thinking capacity. कंसिस्टेंसी कि आपको कंसिस्टेंट होना है, आपको अच्छा खेलना है, वो सब तो मतलब बेयर मिनिमम चीज है, वो तो करना ही है. बट व्हेन यू डिग डीपर, दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट what defines a professional golfer is the way you think on the golf course and off the golf course. The professional conduct होता है, how you interact with the people, how you interact with the game. जब वो सीख जाए बंदा, then I can say कि वो प्रोफेशनल गोल्फर है. अभी मैं ऑन पेपर प्रोफेशनल गोल्फर हूँ. I cannot say कि मैं बन गया हूँ. बनूंगा कब? When I learn those things. When I reach to the talks जो गगनजीत सर ने बात करी थी मेरे से, जब मैं वो चीज किसी और को समझा पाऊंगा, दैट्स द डे व्हेन आई कैन से कि हाँ मैं अब बन गया हूँ प्रोफेशनल. बट या द बिगेस्ट थिंग इज द थिंकिंग कैपेसिटी, द वे यू थिंक. बिकॉज एमेचर इज मतलब कि बहुत बस चल रहा है, आप खेल रहे हो, आप वीक्स टू वीक्स खेल रहे हो. बट देयर यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू रिप्रेजेंटिंग अ होल लॉट मोर. यू रिप्रेजेंटिंग योर आइडेंटिटी इन प्रोफेशनल गोल्फ. एक वो प्रोफेशनलिज्म जो वर्ड है ना, वो इसी से आता है. एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड उधर. योर बिहेवियर, द वे यू प्ले, द वे यू रिएक्ट. तो आई वुड से कि जब बंदा वो समझ जाए, that's when you can call yourself a professional golfer. And uh, yeah, that's the main thing. And consistency is obviously secondary things, but primary is, yes, absolutely the way you follow discipline. How deep down have you thought about discipline once you've turned professional? आपको रूटीन फॉलो करनी है, आपको डाइट फॉलो करनी है, आपको फिटनेस फॉलो करनी है टू स्टे एट दैट लेवल. तो या द थिंकिंग कैपेसिटी एंड डिसिप्लिन आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वुड से is what differs the amateurs to professionals. I won't say कि amateurs are not disciplined या उनमें professionalism नहीं है, but एक higher capacity चाहिए होगी when you turn into a pro golfer. तो वो मैं कहूंगा कि वो दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है once you get into that professional era. Sukman, before we wrap up, we have a this or that segment with us that we can. बिल्कुल. So this or that with Sukman Singh. Birdie on the last hole or eagle on the first hole? I would say eagle on the first hole because that is more rare. So I would say I would obviously choose eagle on the first hole. Olympic gold or world number one ranking? Olympic gold. And because that's where you carry your country as well. So Olympic is like the end goal of any sports person. So I would say the Olympic gold. Playing in India or playing abroad? Playing abroad because that's where you learn a lot, not only about the game but also about the culture. You meet new people. So absolutely playing abroad. Playing with Tiger Woods or Rory McIlroy? Rory McIlroy. He's my role model, I would say, and him completing the career Grand Slam was something next level. So yeah, playing with Rory. And favorite Karan Aujla song? Favorite Karan Aujla song? Good question. I've many people have asked me this, but I would say "At Peace," and only because of the lyrics. I love Gabru, I love Wavy, I love Panchsat, I love Top Fella, I love every song. But "At Peace," the way the way he has written those lyrics is just something else. So this was all for this or that segment. Thank you so much for joining us with Sukman. We Thank wish you all the best for your career ahead Thank you. and all the tournaments you play. And we wish Thank that you. you bring more laurels for the country. Absolutely. Thank you very And much. to our viewers, tell us how did you like the interview. We have Sukman Singh. So till then, take care, bye bye, and subscribe the channel.